Okay, today we got one DD Diamond, Priya Mishra, who was the NDA one-year students of Doon Defense Academy in 2022. She has taken admission here for the 1 year and she has cleared the NDA 1 written examinations in 2024, NDA 1 2024. And she is recommended from 5 FSB Guwahati for NDA 153 course. First of all, clapping for her. Thank you. This is a big achievement by his hard work and dedications. She has recommended, and next step is the medical part, and she will be preparing for the PABT also because she is going for the flying. Okay? Today he came to Doon Defense Academy. This is the right time to motivate you. Now Priya Mishra will share the experience about the Doon Defense Academy, how she had prepared everything, all the academic classes in SSB, and followed by the experience in SSB board, which will be very helpful for you. Okay? So, good afternoon, cadets. Good afternoon, ma'am. How are you? Had breakfast? Yes, ma'am. Okay. So, all of you are from NDA entry or CDS? TES. Going for Okay. TS. Okay, sir. TES entry. And what about you? I'm for NDA 153 course. Okay. When was your SSB? It's pending the next week, 27th of July. Board? Allahabad board. Allahabad board. Okay, okay. That's nice. So, all of you are from TS entry. So, if I am going to share about my written experience, most of you are aware about that the written is all about the strategies. Like you can observe what the subjects are your favorites and where you can go with your positive impact. Like we can see there is a math section, GAT section. Okay, some of you are more well prepared for the math section and another of you will prepare for the GAT sections. So it's all about up to you that what is your major portion and what is your strong portion. So you can done for this. Written is not the something which you have to done too much preparation, but when it comes to SSB you need to really define your personality. Like the assessors are always able to check whatever have done, whatever have not done. All of you are comfortable in English or should I go with the Hindi? No, we are not. Comfortable with English, but I would like to explain in Hindi. So देखो, SSB का experience like it was my first SSB. मतलब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था. सो आई एम नॉट टोटली अवेयर अबाउट व्हाट इज गोइंग हैपन इन द बोर्ड, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ एकदम नया था मेरे लिए. सो सिंस इट वाज द स्क्रीनिंग पार्ट, तो देखो सबसे मेन मैटर करता है वो होता है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स. इफ़ यू आर गुड एट कम्युनिकेशन यू विल बी एबल टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, क्योंकि वो सब कुछ देखते हैं. बट द मेन थिंग विच इज कम इन देयर माइंड वाज द फर्स्ट इज दैट द कॉन्फिडेंस ऑफ द कैडेट. लाइक how much you are confident. If you are not able to present yourself, how can be you going to handle a whole over battalion? So सबसे पहले तो तुमको खुद को prepare करना पड़ेगा. Maybe most of you are elder than me. मैं थोड़ी छोटी हो सकती हूँ, like it's my NDA entry. But हाँ, सबसे पहली चीज़ SSB में the most thing, prepare your OIR section well. OIR matter करता है. Like OIR की रेटिंग मे बी उसके नंबर ना काउंट होते हो, लेकिन जब वो असेसर के सामने PIQ फॉर्म होता है तुम्हारा, उस पर OIR की रैंकिंग लिखी रहती है, वो उनके ऊपर इम्पैक्ट डालती है कि ये इंटेलिजेंस में कितना अच्छा है. सो OIR को बिल्कुल स्किप मत करना. अनदर इज कम्स टू द GD पार्ट. GD पार्ट में सबसे अकॉर्डिंग होता है तुम्हारा पिक्चर. लाइक PPDT में जितना मैंने एनालाइज किया है, मेनली पॉजिटिव पिक्चर्स होती हैं, थोड़ी सी हेजी होती हैं, तो उनमें तुम जितना अच्छा असेस करते हो. लाइक इट्स नॉट ऑल अबाउट कि तुमको आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी लिखनी है, कुछ बड़ा एक्शन लिखना है, कुछ मेरे उसमें मतलब मेरी SSB में ऐसी पिक्चर दिखाई गई थी कि एक बड़ा सा फोर्ट बना हुआ था और नीचे 2 बंदे खड़े थे. कुछ ने बना दी कि एक्सपेडिशन के लिए जा रहे हैं, कुछ ने बना दी कि टेररिस्ट अटैक होने वाला है इसलिए बचा रहे हैं. सो मेक श्योर कि लिमिट माइंड को ब्रॉड करो, पर इतना ब्रॉड मत करो कि जो चीज़ सामने दिख रही है उसको हटा के कुछ और अंदर डालो. तो ये पिक्चर परसेप्शन का फर्स्ट पार्ट होता है. एंड इफ़ यू मेक इट योर स्टोरी, मान लो बना ली, कुछ भी बना दी, ठीक है, सबसे मेन पार्ट आता है वहाँ पे 3 असेसर बैठे रहते हैं. यू हैव टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ. डर लगता है, मुझे भी लगा था, बट इफ़ यू प्रेजेंटेड योर स्टोरी इन अ वेल मैनर. और जब GD का पार्टिसिपेशन है, ट्राई टू नॉट पार्टिसिपेट इन फिश मार्केट. मेरे ग्रुप में 15 लड़कियां थी मेरे ग्रुप में, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 52 चेस्ट नंबर वाज द लास्ट. तो 15 लड़कियां थी मेरे ग्रुप में एंड दे वर लाइक सब ऐसे फिश मार्केट बना लेते. तो असेसर ने इंटरप्ट किया था कि चलो हाफ हाफ कर लो, ऐसे ऐसे कर लो.
सो और सिंस ग्रुप में रिपोर्टिंग कम थी तो स्क्रीनिंग भी ज़्यादा हुए, तो ऐसा कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था. बट व्हेन इट कम्स टू बॉयज़ और टीएस एंट्री, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है आई थिंक, है ना. इतना कुछ आइडिया नहीं है बट रश तो होता है. सो मेक श्योर बी काम एंड रिप्रेजेंट योर स्टोरी इन अ वेरी वेल मैनर. तो अगर तुमने स्क्रीनिंग क्लियर कर लिया 5 दिन, यू विल गेट द हेवन लाइफ. लाइक वहाँ पे तुमको पूरा ऑफिसर लाइक ट्रीटमेंट मिलेगा. वट एवर यू वॉन्ट टू ईट दे विल प्रोवाइड यू. इफ यू डोंट लाइक टू ईट चिकन दे विल रिस्ट्रिक्ट यू, लाइक यू कांट ईट. और अगर तुमको वेज में कुछ खाना है वो ये भी ऑप्शन देते हैं, व्हाट यू वांट ईट. तो और फिर उसके बाद वहाँ पे जितने भी स्टाफ मेंबर रहते हैं एकदम बढ़िया से ट्रीट करते हैं. लाइक 5 दिन तो तुमको लगेगा कि हाँ मैं ऑफिसर हूँ, मैं बन गया हूँ. तो द मोस्ट थिंग कम्स टू द SSB इज डेवलप योर पर्सनैलिटी. लाइक इफ़ यू आर गुड एट कम्युनिकेशन. और सेकेंड थिंग जब आता है, मेरा इंटरव्यू सबसे पहले दिन था, सबसे पहले दिन और सबसे फर्स्ट इंटरव्यू मेरा ही था आई थिंक. या जस्ट नंबर 25 आई वॉज, और मेरा इंटरव्यू सबसे पहले था. तो इंटरव्यूअर का सबसे पहला माइंडसेट होता है दे विल प्रोवाइड यू द ग्राउंड, क्योंकि वो जानते हैं बच्चा किस लेवल से आ रहा है और वो कितना नर्वस हो सकता है. तो सबसे पहले वो स्टार्ट करेंगे तुमसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछना. वो डायरेक्ट जंप थ्रू नहीं करते, चलो बता दो सुखोई की स्पीड क्या है, ये वो करके नहीं करते हैं वो. Mainly PIQ, always focus on your PIQ. Your 95% interview will be totally based on PIQ. So हमेशा ध्यान रखना PIQ की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना. मैंने जो अपनी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, मेरे पास अराउंड 1 महीने के आसपास थे. मैंने 8-10 PIQ फॉर्म भरे होंगे कि क्या है कैसे है, और उन पे वेल प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस कि क्या बन सकते हैं क्या नहीं बन सकते हैं. क्योंकि इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट PIQ. वो हार्ड एंड फास्ट 5% वो पूछ लेगा तुम्हारे इंटरेस्ट के बारे में क्या है, या फिर जिस फोर्स में तुम जाना चाहते हो उसके बारे में तुम कितना जानते हो. दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम हर चीज़ जानो, नहीं, लेकिन तुम्हारी खुद के ऊपर कितनी कमांड है. लाइक यू फील द PIQ एंड इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर फैमिली, व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, व्हाट इज़ योर हॉबीज़. ये तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुमको इसके ऊपर तो कमांड होनी चाहिए ना. इसको बताने में हेजिटेशन नहीं करना है. सो इफ़ यू कैन हैंडल योर PIQ वेल, इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब एज अपॉन माई एक्सपीरियंस. एंड द अनदर थिंग इज GTO. सो कमिंग टू द बॉयज़, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर फिजिकली फिट. मतलब दे नो इफ दे आर गोइंग फॉर द आर्म फोर्सेस तो दे हैव टू बी फिट. बट व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स, आई सॉ इन माई बैचेस दे वर नॉट लाइक लेथर्जिक काइंड ऑफ पर्सन्स, है ना. तो गर्ल्स मस्ट प्रिपेयर फॉर द फिजिकल फिटनेस, बहुत ज़रूरी होती है. Like you are only here, and also for the boys also, you are also guys are capable, but make sure आपका जो individual obstacle होता है, that was the only portion जहाँ आप खुद से स्कोर कर सकते हो. मतलब आप अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हो. और GTO के दिमाग में कुछ नहीं होगा, IO के दिमाग में कुछ नहीं होगा. That was all upon you. So physical fitness is must. If you are going for the armed forces, totally focused on physical fitness. Like I was about to run 5 kilometer daily. Like मेरा जो गोल था कि क्या क्या पोर्शन मेरे को इंक्रीज कर सकता है. द फर्स्ट अपॉन फोकस इज ऑल अबाउट द PIQ फॉर्म, अनदर इज द फिजिकल फिटनेस. क्योंकि बाकी जो स्टोरी राइटिंग पोर्शन आता है वो मतलब इतना फास्ट दिखाते हैं कि वहाँ पे तुम्हारी असलियत ही निकलने वाली है. तुम कितनी भी स्टोरी प्रैक्टिस करके जाओ, वो प्रैक्टिस इसलिए होती है लाइक यू कैन मैनेज द टाइम. मतलब वो प्रैक्टिस करो तुम्हारा टाइम मैनेज होगा, तो तुमको आइडिया रहेगा कि 4 मिनट में स्टोरी कैसे लिखनी है, मैं लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ. बट स्टोरी इज ऑल अबाउट डिपिक्टिंग योर पर्सनैलिटी. तो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी दिखाएगी और उस टाइम पे तुमको कुछ याद नहीं आएगा कि मैंने तो इतनी अच्छी स्टोरी लिखी थी, वो लिख दूँ. नहीं होता है. तो स्टोरी वाज ऑल अबाउट कि ठीक है थोड़ी थोड़ी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस कर लो, हो जाता है. बट व्हेन इट कम्स टू GTO सेक्शन, यू नीड टू ओपन योर माइंड फुली. लाइक आई वाज शेयरिंग एक्सपीरियंस, कमांड टास्क था मेरा. लाइक PGT वगैरह मेरी काफ़ी अच्छी गई थी. आई वॉज प्रोवाइडिंग द आइडिया, ग्रुप वॉज ऑल्सो एक्सेप्टिंग. तो PGT ठीक थी. तो असिस्टेंट ने मेरे को सब मतलब जितना मैंने एनालाइज किया, तो जो GTO थे हमारे, मिस्टर संकेत मिश्रा उनका नाम था, तो उन्होंने मेरे को जो कमांड टास्क के लिए जो ऑब्स्टिकल दिया था वो आई थिंक वॉज टोटली हार्ड, काफ़ी हार्ड था. मैं देख के तो दिमाग गायब हो गया कि ये आइडिया क्या आएगा उसमें टोटल लग सकते थे 3 आइडियाज़. हाँ, सबऑर्डिनेट्स बुलाने के लिए, तो वो थे. एंड देन कमांड टास्क मेरा काफ़ी बढ़िया गया था. और if you perform well, GTO will also help you. Like he helped me. I called him, sir, I will make the rope extension. How will you make the rope extension? ऐसे करके. और वो rope extension मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, उसने पूरी कोशिश करी कि इसके दिमाग में आए कि वो कैसे बना सकते हैं. Then I provide the all 3 ideas. तो GTO के ऊपर अगर आपने इम्पैक्ट डाल लिया, क्योंकि वो पूरे 2 दिन आपके साथ गुजारता है,
है ना, सबसे ज़्यादा टाइम जीटीओ गुजारता है आपका. सो जीटीओ हैव द अथॉरिटी टू गिव यू द क्राइटेरिया कि तुम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हो और कितना दिमाग तुम्हारा काम करता है. क्योंकि आर्मी इज ऑल अबाउट तुमको ग्राउंड पे एक्शन करना है. माइंड से प्रिपेयर इज ओके, बट यू हैव टू ऑल्सो डिफाइन योर एक्शन ऑन द ग्राउंड्स. सो ग्राउंड विल बी मस्ट प्रिपेयर्ड, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये एक स्लोगन है. सो आई वॉज प्रिपेयर्ड एंड जीटीओ सेक्शन ने काफ़ी हेल्प करा था यहाँ पे मेरे को. लाइक रवि सर, माइंड ब्लोइंग जीटीओ, मतलब जो भी आइडियाज़ उन्होंने बताए थे, टैक्टिक्स बताई थी, वहाँ पे काम आई. आई हैव नॉट द आइडिया अबाउट द बॉयज सेक्शन, बट जीटीओ रहता है. सिंस गुवाहाटी नया बोर्ड था तो वहाँ का वो जो ग्राउंड था इतना बड़ा नहीं था, बट या दिमाग तो लगाना पड़ता है ऑब्स्टिकल्स को टैकल करने के लिए. सो यहाँ पे मेरी प्रैक्टिस हुई थी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की, मैंने अच्छी करी थी यहाँ पे प्रैक्टिस. सो आईओ वाज लाइक, वहाँ पे जो गर्ल्स थी वो आई थिंक 6-7 उनका मैक्सिमम जा रहा था इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, एंड आई हैव डन 9 ऑब्स्टिकल्स करे थे मैंने. एंड इंटरव्यू का मैंने बता ही दिया. साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट ब्लैंक पेपर, जो आप सोचते हो, जो भी आपने पीछे तक करा और आप खुद को जितना असेस करते हो. लाइक इफ़ यू हैव क्रॉस्ड योर 12th एग्जामिनेशंस, 12th तक का एक्सपीरियंस तुम्हारे मम्मी पापा के साथ कैसे रिलेशन है, तुम सोसाइटी में खुद को घोल मिल पा रहे हो या नहीं पा रहे हो. इफ़ यू आर टॉकिंग समवन, वो तुमसे खुश हो रहा है कि नहीं, या ऐसा ही बंदा है, छोड़ दो, काम का नहीं है, इस टाइप का. तो साइकोलॉजी में हमेशा तुम्हारा रियल निकलेगा. इफ़ यू सी अ वर्ड, व्हाट इज़ द फर्स्ट थॉट कम्स इन योर माइंड, वही तुम लिखोगे. कुछ भी रटा रटाया नहीं लिख सकते हो. सो पर्सनैलिटी बेटर करने का सबसे अच्छा तरीका है डू द राइट प्रिपरेशन. लोगों से सही तरीके से मिलो और ऑलवेज बी पॉजिटिव. लाइक इफ यू आर सीइंग द गड्ढा, यू विल बी लाइक आई डोंट हैव टू क्रॉस, आई हैव टू फाइंड द आइडिया कि मैं इस गड्ढे को कैसे फिल कर सकता हूँ, या यहाँ पे मेरा क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस पे. लाइक मोस्ट ऑफ यू एनालाइज अ सिंगल थिंग. इफ वी हैव अ सिंगल एग्जाम्पल, लाइक हम कभी बस या ट्रेन वगैरह में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, हमने कुछ खाया एंड देन वी जस्ट थ्रो इट के ठीक है यार साफ ही तो हो जाएगा. इट्स डिफाइन योर पर्सनैलिटी ऑन द पर्टिकुलर टाइम. बट अगर तुम्हारे दिमाग में ये रहता है कि ठीक है, कोई भी चीज़ होती है एक इंसान के करने से ही शुरू होती है, क्यों ना वो इंसान मैं बन जाऊँ, है ना. सो इफ़ यू आर गोइंग टू द बस, वॉट एवर यू हैव ईटन, जस्ट पुट द, जो भी आपका रैपर रहता है अपने बैग में रखो. तो वो पर्सनैलिटी अगर तुम्हारे माइंड सेट में रहती है तो वो पॉजिटिविटी दिखाती है, ठीक है. उसको तुम ब्रिंग आउट नहीं कर सकते हो कि अब मैं कर लेता हूँ. लाइक यू वेंट टू द SSB एंड फिर वहाँ पे तुम अच्छा बनने की कोशिश करो, नहीं मैं तो बहुत साफ सुथरा हूँ, ये वो करके. तो जो बनावटी पर्सनैलिटी होती है वो साइक को आराम से पता चल जाती है. साइकोलॉजी में वो जानबूझ के वैसा टाइम रिस्ट्रिक्शन रखते हैं कि तुम सोच ही ना पाओ जो भी तुमने याद करा है, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तुम वो लिखो. तो साइकोलॉजी में अगर कुछ प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करो. टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. टाइम मैनेजमेंट कर लिया तुमने, 4 मिनट की स्टोरी लिख ले रहे हो, देन इट्स ओके. ठीक है, थैंक यू. Okay, basically Priya shared the very practical experience, which will be very useful for you. Thanks, Beta. Thank you, sir. Basically, you are already same path, preparing for the SSB. Okay, अभी यहाँ पर कर रहे हैं, GTOs कर रहे हैं, ठीक है, निकालों कर रहे हैं. So start preparing things. You have got sufficient time here. Okay, I think this type of opportunity you got today is the best opportunity to get the practical experience by the candidate, or just recently came from SSB board. Okay, so just implement the things and work hard. Okay, and once again congratulations to Priya, Thank the you, bright sir. career ahead in armed forces. Thank All the you. best, Priya. All the Thank best. you, sir. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.